তাহলে আমরা আগের দিন দেখলাম যে হোয়াট ইজ ক্লাস। ক্লাস দেখেছিলাম একটা বেসিক্যালি ব্লুপ্রিন্ট ফর ক্রিয়েটিং অবজেক্টস, or it is basically an idea out of which we can create how many objects, কতগুলো অবজেক্ট ক্রিয়েট করি, ইনফাইনাইট নাম্বার অফ অবজেক্টস। রিয়েল লাইফে যদি আমি রিলেট করতে চাই তাহলে ক্লাস হয়ে যাবে একটা স্টুডেন্ট, স্টুডেন্ট ক্লাস which is an idea. Every student class will have certain characteristics like the name, the roll number, the phone number, blood group, class, section, id, এগুলো অ্যাড্রেস, ঠিক আছে? These will be counted under the students characteristics. আরেকটা পার্ট ছিল যে স্টুডেন্টের বিহেভিয়ার, লাইক দ্য স্টুডেন্ট স্লিপস, স্টাডিজ, প্লেজ, ইটস, এই জিনিসগুলো, তাই না? এবার প্রত্যেকটা স্টুডেন্টে যদি দেখি তাহলে প্রত্যেকটার ক্যারেক্টারিস্টিক কি সেম থাকবে? যেমন নেম, নেম অফ ওয়ান স্টুডেন্ট would be say ABC, the other student name would be XYZ, নেম সেম নাও হতে পারে। তাহলে সেই জন্য লেখা ছিল যে different characteristics the object contain or have different characteristics, কথাটা লেখা ছিল যদি মনে থাকে তোদের, তাই না? আর কমন বিহেভিয়ার, কমন বিহেভিয়ার কি সবারই বিহেভিয়ার, যদি বলি যে দে ইট, স্টুডেন্ট ইট, তাহলে এটা কমন বিহেভিয়ার। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এই গল্পগুলো ছিল। দেখ ক্যারেক্টারিস্টিক যদি বলি টিভি সেটে তাহলে ছিল সাইজ, নাম্বার অফ চ্যানেল, প্রাইস, আর বিহেভিয়ার মানে ফাংশনস would be playing games, viewing movies, এই জিনিসগুলো ফাংশনস এর মধ্যে চলে আসছে, ঠিক আছে? তারপর হোয়াট ইজ জাভা অবজেক্ট? অবজেক্টস আর দ্য এন্টিটিস হুইচ possess different characteristics, যেটা এখনই বললাম, different characteristics and common behavior described within the class, এই জিনিসগুলো আমরা দেখেছিলাম। কোনটার অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল স্পেস খায় না বা নেয় না? क्लास, बिकॉज क्लास इज बेसिकली एन आइडिया, ठीक है? और कौन सा लेता है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद एक टर्म देखा था ना, क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। याद है क्यों बोला जाता है ऑब्जेक्ट फैक्ट्री? n number of objects can be created from a single class, just like a factory where n number of manufactured things are produced, okay? उसके बाद अभी ये देखो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी एक क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्टेंसिएशन। और फिर उस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, उसको बोलते हैं इंस्टेंस। तो द टर्म ऑब्जेक्ट एंड द टर्म इंस्टेंस आर यूज्ड वाइस वर्सा, ठीक है? दोनों का सेम मतलब होता है, कभी कभी ये कभी कभी वो, रिलेटेड। The data members declared within the class are also known as the instance variables. ये नाम है उसका। डेटा मेंबर्स मतलब जैसे मान लो तुम एक क्लास लिखे हो, कोई भी एक क्लास लिखे हो, ठीक है? इसके अंदर मान लो तुम लिखते हो कि इंटीजर रोल नंबर हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग नेम हो गया। ये क्लास के अंदर जो तुम वेरिएबल्स लिख रहे हो, they are also referred to as instance variables. When an object of a class is created, it includes these instance variables described within the class. Therefore, the objects are also called instance of a class. ठीक है? जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट क्लास, याद है स्टूडेंट क्लास, वहां से अगर ऑब्जेक्ट का बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, हाँ कि ना बताओ? तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, दे आर कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ द क्लास स्टूडेंट। हम बोल रहे कि ऑब्जेक्ट्स है, इसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंस है ऑफ द क्लास स्टूडेंट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। ये कहानी हो जा रहा है, इतना याद रखना कि इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट को बोला जाता है इंटर रिलेटेड टर्म से, कभी इंस्टेंस कभी ऑब्जेक्ट। और वो क्लास से ऑब्जेक्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंस्टेंसिएशन। Note, a class is described with certain characteristics. Characteristics मतलब कि the data members, also known as the attributes। ठीक है? ये कुछ कुछ टर्म्स है जो तुमको याद रखना पड़ेगा कि हर एक क्लास का एक कैरेक्टरिस्टिक है। These characteristics can be referred to as the data members or the attributes of the class. हमको बताओ, अगर मैं बोलूँ क्लास डॉग, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? कोई भी एक दो कैरेक्टरिस्टिक बोलो। और कुछ अलग? नेम, करीना, गुड। মধুরা, বল বলতে চাস? স্পিসিস, ঠিক আছে। মধুরা আরণ্যক,
স্যার সবই তো বলে দিল। সব বলে দিলি? হুম, ঠিক আছে, ভালো। আচ্ছা ফাংশন বলে দে তাহলে ক্লাস ডগের। বার্কস। আচ্ছা আচ্ছা, আরণ্যক? আরণ্যক শুনতে পাচ্ছিস? কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না, কি বললি? শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ তো আমাকে বল, ফাংশন বল, একটা ক্লাস ডগের ফাংশন বল। কি बोलছিস रे बाबा, जानिस belonging to a class contain attribute and function। एक बार खुद से पढ़ो तो यहाँ জানি ऐसा कुछ पॉइंट है जो कि नहीं, ফাংশন মানে কি, এই যে অ্যাট্রিবিউট আর ফাংশনের কথা বলতে তুই ছিলি আগের ক্লাসে। আমি যে ভিডিও রেকর্ডেড ক্লাসগুলো পাঠাচ্ছি ওটা নিয়ে কি করিস? মানে তার ভেতরে যা যা জিনিস লিখছি, যেটা মেম্বার্স হয়ে গেল, ফাংশনস হয়ে গেল, একটা ক্লাসের মধ্যে তো ডেটা মেম্বার আর ফাংশন থাকছে। অবজেক্ট যখন বানাচ্ছি তো ক্লাসের জিনিসগুলো অবজেক্টে থাকছে, সেইগুলো হচ্ছে কন্টেন্টস অফ দ্য অবজেক্ট। যেমন স্টুডেন্ট ক্লাস যদি বলি, স্টুডেন্ট ক্লাসে ধর আমার আছে নেম হয়ে গেল, এজ হয়ে গেল, ব্লাড গ্রুপ হয়ে গেল, অ্যাড্রেস হয়ে গেল, ফোন নাম্বার হয়ে গেল। এইগুলো কি, এগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ফাংশনের মধ্যে ইট হয়ে গেল, স্লিপ হয়ে গেল, স্টাডি হয়ে গেল, এগুলো কি হলো ফাংশন। এখান থেকে যখন আমি অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি, তো ধর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম, ঠিক আছে, দিস ইজ অ্যান অ্যাকচুয়াল অবজেক্ট। আচ্ছা এই অবজেক্টের কি থাকবে, নেম থাকবে, দিস উইল হ্যাভ দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইটসেলফ, এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো থাকবে এর মধ্যে। নেম যদি বলি কি, নেমটা হয়ে যাচ্ছে মৃগাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তারপরে এর একটা অ্যাড্রেস থাকবে, প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারিস্টিকই থাকবে এর মধ্যে। এর মধ্যে ফাংশন মৃগাঙ্ক উইল ক্যারি আউট সার্টেন ফাংশনস হুইচ আর এনি অফ দিস ফাংশনস, এই ফাংশনগুলোই থাকবে। তাহলে এই মৃগাঙ্ক অবজেক্টের কন্টেন্ট কি হয়ে গেল, এই জিনিসগুলো ফাংশনটা আর এই যে ভেরিয়েবলস গুলো, দিস আর দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য মৃগাঙ্ক অবজেক্ট। বুঝতে পেরেছিস? যার নামের এক্সাম্পল নেওয়া হচ্ছে তার মাথার উপর দু জিনিস পেরিয়ে যাচ্ছে। তো তুই বলতে তো পারলি না, যখন এসে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তখন তো বলতে পারলি না। না, বাকি ছিল। ও বললো তো, তোর বড়কে জিজ্ঞেস কর। अलग डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, यूनिक बोलता है डिस्टिंक्ट। और कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, क्या फर्क है, ये लिखा बोल रहा है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ प्रोटोटाइप फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये बार बार देखें यहाँ पे ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है। इट इज एन आइडिया। याद है वो घर वाला जो एग्जांपल देते पेपर में स्केच करके जो घर बन रहा है, तो वो जो स्केचिंग था दैट इज अ प्रोटोटाइप। वो प्रोटोटाइप के ऊपर बेस करके एक्चुअल जो मॉडल ऑफ घर बनता है, दोज आर द ऑब्जेक्ट्स। The object is a unique entity having some characteristics and behaviors। यहाँ पे यूनिक एंटिटी बोल रहा है इसीलिए क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट तो अलग होगा ना। जैसे मान लो ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हुआ मृगांक, दूसरा मान लो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होगा अर्शल, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका भी इट विल आल्सो कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फोन नंबर, नेम, एड्रेस, एज, ब्लड ग्रुप एटसेट्रा। इट विल आल्सो कैरी आउट सर्टेन फंक्शन लाइक ईट, स्लीप, स्टडी। बट यहाँ का जो नाम है, जो नेम और ये मृगांक ऑब्जेक्ट का नेम क्या सेम होगा? अलग है ना, ठीक है। मे बी नेम सेम है लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक एवरीथिंग विल नॉट बी सेम, isn't it? कुछ तो यूनिक होगा ही उसमें which will identify। जैसे मान लो एक स्टूडेंट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मिस कर दिया which is the student ID। अब मृगांक का स्टूडेंट आईडी और अर्शल का स्टूडेंट आईडी क्या कभी सेम होगा? नहीं होगा। तो देयरफॉर ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर यूनिक। अर्शल ऑब्जेक्ट यूनिक है, मृगांक ऑब्जेक्ट यूनिक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही ये यूनिकनेस इसमें आ रहा है। ঠিক আছে, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, ঠিক আছে। কারোর কিছু অসুবিধা? क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, जैसे थॉट है।
और ये एक physical entity which is occupying space, actual space. Memory is not allocated in the classes. Class have no physical existence. Or objects are created, they are allotted to the heap memory. ये heap memory एक certain type of memory है. You don't need to know that. Just इतना याद रखना कि इसमें memory allocation लगता है, इसमें नहीं लगता है. बात समझ में आया? अच्छा, it is also known as object factor. It is known as instance of a class. है, ठीक है? व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो इस तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं. एक बार जस्ट गो थ्रू करो. ठीक है. व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ प्रोटोटाइप फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड अ लॉजिकल एंटिटी विद नो फिजिकल एक्जिस्टेंस. Object क्या है? An object is a unique physical entity with characteristics and behaviors created from the class and allotted to memory. ये heap word हटा भी सकते हो, लिख भी सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा. बट तुम्हारे लिए नहीं है ये. किस टाइप का मेमोरी है, मेमोरी का अलग अलग पार्टीशंस, वो तुम्हारा सिलेबस में नहीं है. यू कैन जस्ट से इट इज allocated to memory और यहाँ पे नो मेमोरी रिक्वायर्ड, नो मेमोरी allocation is required in the class. समझ में आया? ठीक है. तो ये दिस कैन बी वर्कड एज द डेफिनेशन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. हालांकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन किताब में भी लिखा हुआ है. ठीक है. हमको না কোশ্চেন আনসার তো পেয়ে যাবে, পেছনে কোশ্চেন আনসার আছে, ওখানে লেখা থাকবে. কোনো অসুবিধা নেই, আমি প্রোভাইড করেছি, আমি কোশ্চেন আনসার আলাদা করে দিয়েছি, সেখানে আমার আনসারটা দেওয়া আছে, কোনো অসুবিধা নেই. পিডিএফ এ মাল্টিপল জায়গা দেওয়া আছে ক্লাস কি অবজেক্ট কি. দেখ প্রথমেই দেওয়া আছে ক্লাস কি, তো তারপরে দেখ অবজেক্ট কি সেটাও দেওয়া আছে, এখানেও দেওয়া আছে. তুই আনসার পেয়ে যাবি, কোনো অসুবিধা নেই. ঠিক আছে. ओके. अब हमको बोलो ये पूरा पीडीएफ से पूरा ये पूरा चैप्टर को समराइज हो गया अभी. हमको बोलो किसी को कुछ भी डाउट है, यस और नो. कुछ भी डाउट है तो पूछो. সফটওয়্যার অবজেক্ট মানে হচ্ছে, দেখ এটা তুই যে দেখেছিস ওটা ওটা রিয়েল লাইফ কানেকশনের কথা বলছে, তাই না? তো রিয়েল লাইফের সাথে সফটওয়্যার যেগুলো বানানো হচ্ছে না, ওই সফটওয়্যার থেকে যে আমরা ইউজ করছি সেগুলো হচ্ছে সফটওয়্যার অবজেক্ট. মানে রিয়েল লাইফের সাথে কানেক্ট করছে জিনিসটা. ওটা ওই জিনিসটাই দেওয়া আছে, দেখ রিয়েল লাইফ সাথে কানেক্ট করে সফটওয়্যার অবজেক্ট কিছু একটা দেওয়া আছে. দিয়ে দেখি বইটা দেখি. আচ্ছা, আমাকে বল পেজ নাম্বারটা বল. মানে অলসের একটা সীমা থাকে. দেখ রিয়েল ওয়ার্ল্ড মানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, রিয়েল যে কোনো দিন রিয়েল ওয়ার্ল্ড সিনারিও নিয়ে নে. যেমন স্টুডেন্টের যে কোনো রিয়েল ওয়ার্ল্ড স্টুডেন্ট তাদের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক আছে আর কিছু কিছু ফাংশনস আছে. এবার সেই জিনিসটাকে রিয়েল ওয়ার্ল্ড থেকে যদি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বলিস তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাস হয়ে যাচ্ছে. স্টুডেন্ট ক্লাস মানে আমি যদি একটা প্রোগ্রাম লিখি তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসে কি কি থাকবে? ভেরিয়েবলস থাকবে আর ফাংশনস থাকবে. সেই জিনিসটাই বলা আছে. বুঝতে পেরেছিস? আর কিছু ऑब्जेक्ट क्रिएशन याद है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन कराए थे ना, कैसे होता है, क्या सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का? এগুলো ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসে. সিনট্যাক্সের জন্য বলতে পারে রাইট দ্য সিনট্যাক্সও বলতে পারে, আর বা বলে দিতে পারে যে যেমন দিয়েছিলাম না কোশ্চেন যে ক্রিয়েট অ্যান অবজেক্ট অফ ক্লাস স্টুডেন্ট উইথ দ্য নেম দিস, এইভাবে বলে দিতে পারে. ঠিক আছে, এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেছে. আমার একটু কোশ্চেন আনসার গুলো দেখে নেবো বই থেকে. চেষ্টা করেছিস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস গুলো করে? এমসিকিউ কি আছে? মধুরা আমি তোকে ছবি পাঠাচ্ছি, একটু দেখা. স্যার আছে ছবি। ছবি আছে কোশ্চেন আনসারের? হ্যাঁ স্যার হাতে নিলি? আছে তা। अर्चिता. अर्चिता তোকে পাঠিয়েছে কিন্তু নিজেই তো পড়াশোনা করে না. কত নম্বরে আছে রে? পেজ নাম্বার 51 এ আছে. তোদের তুই দেখ না আছে তো, এমসিকিউ নেই ওটাতে? কোনো অসুবিধা নেই, আমরা ডিসকাস করব.
তোর সাথে বসে যা, দেখতে পাবি তোরা। তারা ব্যাগগুলো একটা সাইডে রেখে না, আর নাহলে তুই চলে যা ওখানে শুনবি ওর সাথে। আর অনেক বই আছে। তোর জীবনে অন্ধকার হয়ে আছে কেন অমনি? লাইট ফাইট জ্বালা। এ, আবার এই ছবিটা, নিজের রুমটা লাগা রে। ও, কিসের জন্য বইটা খুলে আজব মাইতি, সত্যি খেপে গেছিস পুরো মনে হচ্ছে। এমসিকিউ কর, হয়ে গেলে বলবি, ডিসকাস করব। এই যে প্রথমটা দেখছিস, যে পিকচার ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন দিয়েছে, এই টাইপেরই বোর্ডে আসে, প্রি বোর্ডে এসেছিল এইবারও। पेन से मार्क मत करना। अब हाँ, पेन से मत करना, नहीं तो गलत बाई चांस हुआ तो फिर चेंज करने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो सेक्शन चेंज हो चुका দিগন্তে চেঞ্জ করে দিয়েছো। সি, তোকে আমি দিয়েছো, বদমাশি করিস নাকি? ও এট এ থেকে বিতে যাবে। 9 জানি বাবু, কোন সেকশন? তোকে এ দিয়েছে। মারবো, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অমনি হলে সেকশন এ পেতিস না, বি পেতিস না, হয়ে যাবে। চল, অনেক হলো। বল, প্রথম একটা বল। Name the feature of class in Java depicted in the above picture. কি বলে? Class is an object factory. আচ্ছা, করেছিস? মেঘা একটাও করেছিস? হ্যাঁ? Animal is an object factory. আচ্ছা, করিস নি? Class is তোরা কি করেছিস? Class is an object factory. কারণ কিছু করেছিস? না, করিসনি? ঠিক আছে, ভালো, গুড। আচ্ছা, তাহলে এটা হয়ে যাবে ক্লাস ইজ অ্যান অবজেক্ট ফ্যাক্টরি। কেন? কারণ হচ্ছে
দেখ লেখা আছে যে ওই অ্যানিমেলটা ইজ আ ক্লাস, লেখা আছে, ডিপিক্ট করা আছে। এবার একটা সিঙ্গেল ক্লাস থেকে মাল্টিপল ডিফারেন্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট হচ্ছে, যেমন একটা স্টুডেন্ট ক্লাস থেকে মাল্টিপল ডিফারেন্ট স্টুডেন্ট অবজেক্ট ক্রিয়েট হচ্ছিল, তাহলে ক্লাস ইজ অ্যাক্টিং লাইক আ ফ্যাক্টরি which is producing the different animals, hence class is an object factory। এই আইডিয়াটা এখানে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। animal is an object factory না, animal is a class, তো class is an object factory, ঠিক আছে। আর বারবার আমরা এই জিনিসটা রিপিট করেছি, ক্লাস ইজ অবজেক্ট ফ্যাক্টরি এই জিনিসগুলো। আচ্ছা, তারপর সেকেন্ড, আ ক্লাস ইজ আ টেমপ্লেট ফর ইটস অবজেক্ট। টেমপ্লেট বা ব্লুপ্রিন্ট, এই কথা দুটোই আমাদের এখানে নোটে ছিল, একটু আগে দেখলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তিনেরটা, an object is an instance of a class which is a valid display method declaration of a simple of a sample class। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ক্লাস নেমটা হচ্ছে স্যাম্পল আর ডিসপ্লেটা হচ্ছে এই ক্লাসটার মধ্যে আছে, তাহলে কিভাবে ওটাকে প্রপারলি লেখা যাবে, কোনটা হবে? অপশন এ, বি, সি, ডি, কোনটা? बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन था मैंने पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ऑप्शन बी, ठीक है इस तरह से। अच्छा, 5 नंबर वाला, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज आल्सो रेफर्ड टू एज इंस्टेंसिएशन, अभी कुछ देर पहले रिपीट किया था बार बार। बाय डिफॉल्ट क्लास इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक इज द एक्सेस स्पेसिफायर। अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पिछली क्लास में बात किए थे ना एक्सेस स्पेसिफायर का, क्या है, व्हाट इज एन एक्सेस स्पेसिफायर? 5 करोड़ वाला एग्जांपल तो समझे? আরে সেটা বলেছিল না, ব্যাংকের পিন এটিএম কোনটা শেয়ার করবি, তাই না, মনে আছে? নিচে था कौन सा वाला था? हाँ हाँ, 500 करोड़ के बगल में था। हाँ ये देखो। जैसे ये बैंक अकाउंट है, बैंक एटीएम है ना, तो कौन सा ये छोड़ के मान लो दूसरा, सबको फोन पे गूगल पे यूज किए हो पैसा ट्रांसफर के लिए, यूज किए हो ट्रांजैक्शन के लिए, করেছিস? ঠিক আছে, এটা দিয়ে বুঝিয়ে তাহলে আরেকবার। যেমন ধর একটা ফোন, এই ফোনটা ওইটা ওই যে অর্ধেক খাওয়া আপেল একটা থাকে না, ঠিক আছে, कम दामी फोन जेटा होता है, ठीक है। और ये वाला है, ये एचपी का फोन है, ये सस्ता वाला फोन पे है जो आधा खावा एप्पल जिसमें, ठीक है। तो मान लो तुमको यहाँ पे फोन पे खुला हुआ है, फोन पे इधर भी वो स्कैनर है जो भी है, तो तुमको ये सस्ता वाला मोबाइल फोन से यहाँ पैसा भेजना है, तो तुमको क्या चाहिए, मान लो ये एचपी का वाला में, तुम्हारे पास जो एचपी में जो डिटेल्स है दैट वुड बी द फोन नंबर है इसमें, बैंक अकाउंट पिन है एक, ठीक है, फिर इसमें मान लो और भी बहुत सारा पासवर्ड वगैरह है, ठीक है। तो ये एप्पल से यहाँ पैसा भेजने के लिए मेरे को कौन सा वाला डेटा चाहिए, पैसा भेजे हो ना, तो स्कैनर के अलावा कैसे पैसे भेजा जाता है? फोन नंबर से, तो मेरे को फोन नंबर चाहिए ना, मतलब ये फोन नंबर जो है वेरिएबल दैट शुड बी एक्सेसिबल बाय दिस, यस और नो, समझ में आ रहा है? बट क्या ये भी एक्सेसिबल होना पड़ेगा इसके लिए? नहीं होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि ये सर्टेन जस्ट ये वाला वेरिएबल जो है दैट शुड बी एक्सेसिबल, बट बाकी वाला सब नहीं एक्सेसिबल होना पड़ेगा। तो यही है एक्सेस स्पेसिफायर का काम, मतलब कुछ कुछ चीज एक्सेसिबल होगा, कुछ कुछ चीज नहीं होगा। दिस इज द टास्क ऑफ अ एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज टू हाइड सर्टेन थिंग्स while to make certain things available। यहाँ पे things मतलब certain functions या certain variables और certain functions, ठीक है। ये कुछ कुछ अवेलेबल कराएगा दूसरे क्लास का एक्सेस करने के लिए और कुछ कुछ को हाइड कर देगा।
दैट इज द वर्क ऑफ अ एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर तीन चार टाइप का है बेसिकली. एक है पब्लिक, प्राइवेट और एक है प्रोटेक्टेड. एक चौथा वाला है डिफॉल्ट. तो ये तीन ही मेनली तुम लोग सुनोगे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड. शायद क्लास 8 में भी था ये चीज, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब चीज. एक्सेस स्पेसिफायर ये प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या है बताओ. जो लिखते हो ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके लिखते हैं ना, तो पब्लिक मतलब होता है कि जो भी हम उसके अंदर लिख रहे हैं ये मेन फंक्शन के अंदर, दैट इज एक्सेसिबल बाय अदर क्लासेस. समझ में? अगर मैं पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड या प्राइवेट लिखूं तो वो उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा, तब उसमें कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे जो कि आगे पढ़ोगे. ठीक है. सेवन, सेवन वाला क्या होगा? न्यू, न्यू कीवर्ड. एट, का ऑब्जेक्ट, एट का ऑब्जेक्ट. अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स देखो. A dash is also considered as an object factory. Class is also considered as an object factory. The dash of a class differ on various characteristics. The dash of a class differ on various characteristics. Object of a class, object of a class. अभी तो पढ़े ना, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल एक्चुअल स्टूडेंट्स, उनका सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होगा. अच्छा, उसके बाद थर्ड वाला, द टर्म डैश इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स. इंस्टेंसिएशन. The class is a dash for the objects. Class is a prototype या blueprint. Prototype or blueprint for the objects. The dash keyword indicates an operator for dynamic memory allocation. क्या होगा? New. 6 different object of a class have common common behaviors. Common behaviors or different characteristics. Different characteristics, common behaviors. उसके बाद थर्ड वाला ये असर्शन एंड रीजनिंग, ये कुछ टाइम से काफी आ रहा है. ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो. क्या बोल रहा है पहला वाला कि a car can be defined as a real world object that possesses some characteristics and behaviors. क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है सुन के? पढ़ के देखो तो हमको बताओ पहला वाला सही लग रहा है या लग रहा है? हाँ. सेकंड वाला देखो, रीजन देखो. each real world object may contain some characteristics but not behavior. नहीं है. तो assertion सही है बट द रीजन इज सही नहीं है. तो मेरा कौन सा ऑप्शन आप देखो करेक्ट होगा? देखो पढ़ के देखो एक एक ऑप्शन. सी वाला सही होगा कि assertion A is true, रीजन R is false. उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या क्या होगा. हाँ वो देखो, उसका ड्रेसिंग टेबल के बगल में एक थैला है, उसमें तुम्हारा सामान. लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 बन गया? नहीं बना? अच्छा, लाइन 1 तो बन ही गया होगा. डैश क्लास फ्रेंड लिस्ट. ये हमको बोलो ये क्या स्टेटमेंट है, क्या कर रही है स्टेटमेंट? पहला वाला जो लाइन है, पहला लाइन क्या कर रहा है बताओ?
অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার ওখানে একটা ইউজ হবে ওই পার্টিকুলার ওই লাইনটা কি করছে ওটা আমার ক্লাস নেমটা আমি ডিফাইন করছি ওকে লিখছি তাই না তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে पब्लिक করে देबो पब्लिक क्लास और फ्रेंड लिस्ट यहाँ पे क्या है क्लास नेम है फ्रेंड लिस्ट ठीक है उसके बाद पढ़ो प्रोग्राम पढ़ो एक फंक्शन लिखा हुआ है दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है उसके बाद मेन फंक्शन में क्या है कि बोल रहा है कि लाइन टू में क्या कर रहा है बोलो ये लाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है लाइन टू का ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है ना तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटेक्स याद करके उसमें हम लिखेंगे जैसे पहले क्या है वो क्लास नेम लिखा हुआ है फ्रेंड लिस्ट उसके बाद क्या है माई सेल्फ वो क्या है माई सेल्फ ऑब्जेक्ट नेम है इक्वल टू क्या लिखेंगे न्यू उसके बाद क्या होगा फिर से क्लास नेम होगा फ्रेंड लिस्ट उसके बाद लाइन नंबर 3 में क्या हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है इस लाइन का बताओ इस लाइन का ऑब्जेक्टिव है डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना डॉट डिस्प्ले डीआईएसपी नेम है ना तो इस कोई भी फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे बाय रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट नेम फर्स्ट तो यहाँ पे हम लिखेंगे myself which is the object name that we had created dot उसके बाद बाकी जो है कि this name उसके बाद फोर्थ लाइन क्या है फोर्थ लाइन फिर से ऑब्जेक्ट लाएगा तो इट इज myself डॉट फिर यहाँ पे this address इस तरह से समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया বুঝেছিস বুঝেছিস আরে তোরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া বুঝেছিস না ফ্রিজ হয়ে গেছে फिर पेज 49 में चले जाओ देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ देखो लाइक why is an object called instance of a class difference between class and object how are class and object interrelated फिर फोर्थ वाला देखो write a java statement to create an object mp4 of class digital मतलब क्लास नेम है डिजिटल ऑब्जेक्ट नेम इज mp4 उसका आंसर सब दिया हुआ है इसमें से कुछ दिक्कत होने का रीजन नहीं है बोलो कुछ दिक्कत अभी तक के लिए नहीं ठीक है प्रोग्राम लिखो মধুরা কিছু অসুবিধা তখন नंबर रिवर्स करना है 2 डिजिट नंबर ही लेना है मैं स्पेसिफाई कर दिया अब ये कहानी क्या है ना ये प्रोग्राम इस तरह से रहता है एक्चुअल में कि कोई भी डिजिट का नंबर इनपुट हो 1 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी हो उस नंबर को रिवर्स करना है जैसे मान लो अगर 123 इनपुट आया तो उसको करना है 321 बात समझ में आ रहा है अगर 543 इनपुट आया तो उसको 345 बनाना है उल्टा रिवर्स करना होता है कोई भी डिजिट के लिए 3 4 5 डिजिट के लिए तो वो हम लोग लूप यूज करते हैं लूपिंग अभी तक पढ़े नहीं हो तुम लोग तो मैं इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया कि द इनपुट डिजिट इज अ 2 डिजिट नंबर अब ये सिर्फ 2 डिजिट पे तुम खेल सकते हो इसको रिवर्स पॉसिबल है विद द नॉलेज दैट यू हैव
एंड टिल नाउ। ठीक है, कोशिश करो, नहीं है तो बता ही देंगे। अच्छा, अब से तुम लोग प्रोग्राम में जो करोगे दैट इज मैंडेटरीली कुछ कुछ चीज याद रखना, सुन लो। क्लास नेम जब लिखोगे तो इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। क्लास नेम शुड बी मीनिंगफुल, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है। वेरिएबल, ठीक है, जब वेरिएबल्स लिखोगे उसका भी नेम जो है इट शुड बी मीनिंगफुल, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, और जो इंक्लूड करना है दैट इज कमेंट स्टेटमेंट्स। कमेंट स्टेटमेंट्स पढ़ाए हैं ना, सिखाए हैं क्या होता है। कमेंट स्टेटमेंट्स इंक्लूड करना है मैंडेटरीली। ठीक है, इसके बाद इनपुट आउटपुट सिखाऊंगा, इसके बाद कैसे होता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन सिखाऊंगा, वो सब मिलके 15 मार्क्स का आता है। कुछ भी यहाँ छूटेगा तो मार्क्स कट जाता है। ठीक है, and time limit I'm giving is 15-20 minutes. धीरे धीरे ये टाइम 15 तक आ जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि शुरुआत है तो मैं 20 मिनट्स दे रहा हूँ इसको। कैसे करूंगा इसका? 23 है ना, मुझे इंडिविजुअल डिजिट्स चाहिए, मुझे 2 चाहिए, मुझे 3 चाहिए। कैसे करूंगा? पिछले क्लास में बताया था ना कि लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर कैसे डिराइव करूंगा। कैसे कैसे है? मॉड 10 करके। तो लास्ट डिजिट मतलब क्या, यहाँ पे वो वंस डिजिट वाला, वंस पोजीशन वाला आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि इंट वंस करके दैट इज इक्वल्स टू नम मॉड 10, है ना। इससे मेरे को क्या मिलेगा? 23 मॉड 10 मतलब कि कितना मिलेगा? 3 मिल गया मेरे को। हो गया, वंस मिल गया। अब मुझे चाहिए टेंस। तो टेंस जैसे कोई भी नंबर का कोई भी नंबर हो, मॉड 10 करने से लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस वाला डिजिट मिलता है। उसी तरह कोई भी नंबर हो, उसको बाई 10 करने से क्या होता है, ये लास्ट डिजिट हट जाता है, बाकी रिमेनिंग वाला उसमें आ जाता है, मतलब क्वोशिएंट आता है ना। इस तरह से सोच सकते हैं, लास्ट डिजिट हट जाता है। तो तुमको लास्ट डिजिट चाहिए तो मॉड 10 करो, लास्ट डिजिट हटा के बाकी सब कुछ चाहिए तो बाई 10 करो। समझ में आया? तो इसमें जब तुम 3 तुमको मिल गया, 3 का काम खत्म। अभी चाहिए क्या? बाकी रिमेनिंग जो डिजिट्स है, क्या करेंगे उसके लिए? नम बाई 10 कर दूंगा। तो खुद सोच के देखो इसमें क्या हो रहा है, 23/10 मतलब जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट कितना आएगा? 2 आएगा। तो मिल गया मेरे को वंस और टेंस वाला पोजीशन का वैल्यूज मिल गया। ये वाला इनिशियल ये वाला था। अब नया वाले में क्या हो रहा है देखो, जो वंस वाला था उसके साथ इंटू 10 हो रहा है कि नहीं? तो मैं यहाँ कर सकता हूँ कि इंट न्यू या फिर रिवर्स नंबर करके एक लिखता हूँ, इंट रिवर्स नम। इसमें हो क्या रहा है, कैसे रिवर्स करेंगे? वंस वाला जो था, वंस वाला डिजिट इंटू 10 करेंगे, प्लस जो टेंस वाला डिजिट था वही तो यहाँ पे हो रहा है लॉजिक। तो क्या करेंगे, मैं वंस, हाँ वंस इंटू 10 प्लस टेंस। इससे क्या हो रहा है कुछ सोच के देखो। ये वंस में क्या था 3, टेंस में क्या था 2। तो मैं जब वंस इंटू 10 कर रहा हूँ मतलब कितना हो रहा है 3 इंटू 10, और प्लस ये टेंस में कितना था 2 था ना। तो 3 इंटू 10 प्लस 2 मतलब 32 मेरा आ जा रहा, विच इज द रिवर्स नंबर। समझ में आया? क्लियर है? बस यही लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना करना था, इसमें कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ने वाला चीज है। बस कभी भी रहे, हम बता रहे बार बार बता रहे, कभी भी इस तरह का मैथमेटिकल रिलेटेड प्रोग्राम रहे तो प्रोग्राम भूल जाओ कि कंप्यूटर कर रहे हो। पहले नॉर्मल मैथ्स वाला ही लिखो, सोचो कि किस तरह से करने से ये 32 बन रहा है, सिंपल लॉजिक। तुम जब ये लॉजिक लिख लोगे, इसके बाद इसको तुम कंप्यूटर कोड के हिसाब से लिख लो, बात खत्म। ठीक है, हमेशा इस तरह से करो, आराम से प्रोग्राम बन जाए। ठीक है, जैसे इसका अगर मैं टाइप करके बताना चाहूँ तो
इतना क्लियर है, सबको दिख रहा है ना? इनपुट नीचे ना, তুই ফাংশন ইনপুট নিতে পারিস, অসুবিধা নেই। এই অনলাইন কম্পাইলার ফাংশন ইনপুটটা সাপোর্ট করছে না, সেই জন্য আমি স্ক্যানার ক্লাস দিয়ে ইনপুটটা নিচ্ছি। তুই ফাংশন इनपुट নিতে पारिस, बस इनपुट लेना है कैसे भी लो, तुम बफर डिटेल्स लो, बफर सीके नहीं हो तो तुम स्कैनर लो या फंक्शन लो, कोई इशू नहीं। ये हो गया, ठीक है। अब देखो जैसे कमेंट लिखना था ना, तो मैं तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं एंटर मार के स्पेस बना दिया, लेकिन अगर तुम कॉपी में लिख रहे हो तो वहां पे दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए सोच के लिखना है कि यहाँ पे मैं कमेंट लिखूंगा कि टेकिंग द नंबर एज इनपुट टू रिवर्स, ठीक है। इसके बाद मेरे को रिवर्स करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कुछ कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि इंटीजर रिवर्स नम इक्वल्स टू जीरो ले लेंगे, कभी भी अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ेंगे, जीरो ले लेंगे, ठीक है। जीरो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन लेने से फर्क पड़ सकता है, तो जीरो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं लॉजिक लिखूंगा टू रिवर्स द नंबर, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखता हूँ कि फाइंडिंग द वंस and tens digit number from the number, मैं लिखूंगा इंटीजर वंस इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा, कैसे फाइंड करूंगा वंस डिजिट वाला, मैंने लास्ट डिजिट फाइंड करना, कैसे करेंगे, मॉड 10 हो गया, फिर इंटीजर टेंस इक्वल्स टू क्या करेंगे, मैंने लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी चाहिए मेरे को, तो क्या करेंगे, नम बाय 10, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे को रिवर्स करना है, तो लॉजिक टू रिवर्स द गिवन नंबर, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रिवर्स नम इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, वंस वाले के साथ इंटू 10 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, टेंस वाला डिजिट करेंगे, और समझ में आया? बस डिस्प्ले कर देंगे कि रिवर्स ऑफ इज सेकंड क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे देखो 45 अगर देते हैं तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 54, इस तरह से, बात समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ, देखो 45 की जगह पे 124 देते हैं, तो रिवर्स ऑफ 124 इज 52 दिखा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, सर पैर नहीं है, नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे और एक स्टेटमेंट जरूरी है, विच इज टू चेक कि इफ द नंबर इनपुट इज स्पेसिफिकली अ टू डिजिट नंबर और नॉट, नहीं है तो मेरे को इनवैलिड इनपुट डिस्प्ले करना है तो ही मेरा ये एग्जीक्यूशन के साथ जाए, समझ में आया? बुझते पेरेছিস কি বলছি? तो ये कहाँ पे करेंगे बताओ तुमको, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ये लॉजिक ऑफ रिवर्सिंग, या फिर ये चेकिंग जो है कि टू डिजिट है नहीं है, कौन से लाइन पे इम्प्लीमेंट करेंगे? লাইন নাম্বারটা বল, দেখ লাইন নাম্বার আছে কোথায় দেখে মনে হচ্ছে, না লাইন নাম্বার বল, না 5 এর পর নিলে আমি ইনপুটই নিচ্ছি, তো আমি চেক করবো কি করে, আমার লাইন 6 আর 7 এ তো ইনপুট আসছে, ইনপুট না নিয়ে আমি নাম্বারটা চেক করবো কি করে, তাহলে আমি এখানে চেক করব, ইনপুটটা নেব, তারপরে আমি চেক করব যে চেকিং ইফ দ্য নাম্বার ইজ टू डिजिट और, है ना, यही पे तो चेक करना है, नंबर इनपुट आएगा तभी तो मैं चेक करूंगा, उससे पहले कैसे चेक करूंगा, मैं करूंगा कि इफ ये यहाँ पे करेंगे, मैं करूंगा
78। समझ में आया क्या किया? ये वाला लॉजिक समझ में आया? नहीं? सोचो, कोशिश करो समझने की। কি করলাম বলতো ব্রেন থেকে? क्वेश्चन, कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, बाय 100 करो, क्वेश्चन कितना आएगा? कोई भी 1 डिजिट नंबर लो, काफी दिक्कत हो जाएगा इसमें। 1 डिजिट से भी दिक्कत हो जाएगी, नहीं चलेगा। हाँ, ये गलत हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है इसमें, क्योंकि ये 1 डिजिट और 2 डिजिट दोनों के लिए 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वही चेक करना पड़ेगा कि इफ num is greater than equal to 11 and num is less than equal to 90। মধুরা তুই যেটা করেছিস না, ওটা তো এই সিঙ্গেল ডিজিটের প্রবলেমটা আসবে দেখবি। স্যার আমি তো এটাই করেছি, না, এটা এখন তুই করেছি। -100 থেকে করেছিস না, দেখ -1 থেকে 100 করেছিস। তুই -100 থেকে করেছিস না, -100 থেকে 100 সেই রেঞ্জে তো সিঙ্গেল ডিজিটও চলে আসছে। বল কিছু डाउट এটাতে? किसी को कुछ दिक्कत है? किसी को नहीं? वो जो बाय 100 किए थे ना, एक मिनट, वो बाय 100 किए थे, वो लॉजिक तब काम करता अगर कोई भी मान लो तुमको नंबर ढूंढना है विच इज आइदर सिंगल मतलब 1 डिजिट और 2 डिजिट, इन दैट केस वो काम आ जाता है। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 डिजिट तो उसमें नहीं आ रहा वो चीज, ठीक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ। ये मैं थोड़ा सा तुमको दिखाना चाहता हूँ, इसका ना मैं सोल्यूशन ऑलरेडी करके रखा हूँ। ये वाला राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये वाला जो लॉजिक यहाँ पे पहला वाला दो लॉजिक है, लॉजिक 1 जो कि अभी डिस्कस किए हैं वो वाला, और एक है लॉजिक 2 যেটা তুই করেছিস, দেখেছিস তো শিওর? হ্যাঁ, ठीक है, ভালো কথা না দেখলে ये वाला देखो, ये सिंगल लाइन में रिवर्स हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, ঠিক আছে, নিজে করলে খুব ভালো কথা। यहाँ पे वो क्या रहा है एक बार देख लेते हैं। सिंगल लाइन में जो कि 2-3 लाइन में किया था, ये सिंगल लाइन में हो रहा है और कुछ डिफरेंस नहीं है, लॉजिक सेम है। कैसे हो रहा है? जैसे मान लो नंबर है 23 सपोज, ठीक है। नंबर अगर 23 आया तो ये तो ब्रैकेट में है ना, तो सबसे पहले इसका काम होगा। तो ये क्या कर रहा है, 23 mod 10 मतलब कितना रिटर्न करेगा? 3। अब 3 के साथ क्या करेगा, इंटू 10 करेगा, तो इंटू 10 करने से कितना रिटर्न आ रहा है, 30। उसके बाद ये ब्रैकेट में है, तो इसका काम सेपरेटली होगा इंडिपेंडेंटली, तो ये कितना हो जा रहा है, 23/10। तो 20 कितना आएगा ये, 2। तो बेसिकली ये क्या रहा, 30 + 2 कर रही है, तो विच इज 32 रिवर्स हो जाए, इतना ही काम। तो दो अलग अलग तरीके का लॉजिक यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, बट इसमें जो है विच इज इट इज नॉट चेकिंग फॉर वेदर नंबर इज अ 2 डिजिट नंबर स्पेसिफिक, ये तुमको मैं अलग से दिखा के कि अगर तुम ये करते हो तो चलेगा प्रोग्राम, बट तब तक चलेगा जब तक यूजर एग्जैक्टली 2 डिजिट नंबर इनपुट कर रहा है। अगर 1 डिजिट 3 डिजिट करता है तब जाके एरर आउटपुट आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उसके साथ जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तुमको करना पड़ेगा, विच इज गिवन ओवर हियर, ठीक है। इसको भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इसमें।
ऑन हो जा रहा है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा प्रोग्राम है जो आगे जाकर हम लोग करेंगे। बोल बोल चीजें देखिए, काटाकुटी कोड भी ना आगे থেকে ভেবে রাখবে যে কি করতে চাইছি। बुझেছিস? किसी को डाउट है कुछ? है? नहीं है? पक्का? होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो।